Today, students, in climate, you are going to study about the climatic controls. Climatic controls means influencing factors of climate: latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents, and relief features. Of these, the first two are already studied yesterday. You have studied these topics. So let us proceed to the next topic. Suppose this is one of the important factor: distance from the sea. Distance from the sea means what is the location of the place, whether it is close to the sea or it is far away from the sea. And this location influences the climate of the place. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentality. You have studied some terms here: extreme weather condition, continentality. Continentality means very hot during summer and very cold during winter. If the place is situated very close to the sea, then what type of temperature will be there? There will be moderate temperature conditions. It is neither too hot in summer nor too cold in winter. You can take the example of the places located near the sea, like Trivandrum or Tiruvananthapuram. New name is Tiruvananthapuram, Mumbai, Chennai, Vishakhapatnam. These type of places which are very close to sea or they are located on the coastline have moderate temperature conditions. They are neither too hot in summer nor too cold in winter. And this type of temperature condition is known as moderate temperature condition. So coastal areas have what type of temperature condition? Repeat. Moderate. Coastal areas have moderate temperature condition. But when you go to the interior part of the continent or the country, what will happen? The continentality will increase. That means it will become very hot during summer and very cold during winter. For example, Patna, Jaipur, Delhi, Bhopal, these are very far away from the ocean. So these places are very hot during summer and very cold during winter. This type of climate is also known as extreme climate, or this effect is known as continentality, right? So as the distance from the sea increases, the difference of summer and winter temperature also increases. Summers become very hot and winters become very cold. But if the place is located on the coastline, it is moderate, right? Have you understood this? Now, on this topic, pressure and wind system. Pressure and wind. So come to this topic, pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on the climate. तो ये प्रेशर और विंड का क्या रोल है? तो पूरे ग्लोब को ना कुछ अल्टरनेट प्रेशर बेल्ट हैं, ग्लोब के ऊपर कुछ अल्टरनेट प्रेशर बेल्ट हैं और उसी अकॉर्डिंगली क्या होता है, विंड का डायरेक्शन होता है. जैसे प्रेशर बेल्ट का क्या मतलब हो गया? हाई लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, again low pressure belt and then high pressure belt. So there are alternate low pressure and high pressure belt on the globe. So accordingly the direction of wind is there because the wind blows always from high pressure to low pressure. So now you will see one diagram. Are you seeing this? Are you able to see?
This boy, Ritesh Kumar. Why he is so late? He will not be admitted in the classroom because you have to come timely. So this is the diagram of major pressure belt and wind system. Major pressure belt and wind system. The globe, the whole globe of the earth is divided into alternate pressure belts. Start from here, from 0 degree. This is equator, line of equator. So around equator, approximately 5 degree north and 5 degrees south of equator, there is a pressure belt which is known as low pressure belt. Here is low pressure of air. Here is high pressure of air. It is known as subtropical high pressure. Subtropical high pressure around 30 degree north latitude and also around 30 degree south latitude. है ना, ये दोनों हेमिस्फीयर में अल्टरनेट प्रेशर बेल्ट्स हैं. स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? इक्वाटोरियल लो प्रेशर से. ठीक है, तो इक्वाटोरियल लो प्रेशर के बाद कौन सा प्रेशर बेल्ट है बताओ? साउदर्न ट्रेड विंड. देखो ये है ना, ये लाइट ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है ये क्या है? इक्वाटोरियल लो प्रेशर. और इसके बाद क्या है यहाँ पे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. You will see this diagram in your atlas, है ना, जो हम तुमको यहाँ दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये तुम सेम डायग्राम एटलस में देखोगे. प्रीवियस क्लास में भी, क्लास 7th में भी तुम पढ़े होगे इसको. तो ग्लोब के ऊपर ना ऐसे परमानेंट एयर प्रेशर बेल्ट हैं. यहाँ पर एयर का कैसा प्रेशर होता है बोलो? इक्वेटर के पास लो प्रेशर होता है. लो प्रेशर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दोनों तरफ उसके आसपास कैसा एयर प्रेशर होता है? हाई प्रेशर होता है. फिर कैसा होता है? लो प्रेशर होता है 60 डिग्री के अराउंड. 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास कैसा एयर प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है. फिर लास्ट में मतलब 90 डिग्री के अराउंड, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और फिर उसी तरह से साउथ पोल में भी क्या होता है? हाई प्रेशर होता है. तो ये अल्टरनेट एयर प्रेशर बेल्ट क्यों होता है? यहाँ पर इक्वेटर के पास एयर का लो प्रेशर, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, ऐसा क्यों है? फिर यहाँ पे लो प्रेशर, फिर लास्ट में यहाँ 90 डिग्री के पास हाई प्रेशर. तो प्रेशर ना एकदम टेम्परेचर से रिलेटेड है. तो इक्वेटर के पास क्या होता है कि सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यहीं पहुंचता है इक्वेटर के पास. तो यहाँ की हवा गर्म होकर राइज करते रहती है, ऊपर की ओर उठते रहती है. राइजिंग विंड का भी एक डायग्राम तुम्हें दिखाएंगे हम अभी. तो वो पहले ये इमेजिन करो कि दोनों तरफ से आने वाली हवा, जो ये विंड आ रही है, एरो मार्क से दिखाया हुआ है, ये विंड आ रही है, एरो मार्क से दिखाया हुआ है. तो दोनों तरफ से आने वाली हवा मिल करके ऊपर की ओर उठ जाती है ना. देयर इज राइजिंग टेंडेंसी ऑफ विंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर. और इसीलिए यहाँ इक्वेटर के पास क्या है? एयर का लो प्रेशर बेल्ट है और ये परमानेंट है. सालों भर हमेशा यहाँ पे ऐसी परमानेंट प्रेशर बेल्ट रहता है. ठीक है ना. फिर देखो यहाँ पे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है ये 30 डिग्री के पास है. तो ये क्यों तैयार होता है? क्योंकि यहाँ से जो विंड राइज करती है ना इक्वेटोरियल रीजन से, वो ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे क्या होती है? ऊपर उठने के बाद फिर जाके यहाँ पे सिंक करती है, यहाँ पे जमा होती है ना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली यहाँ से कम है. इक्वेटोरियल रीजन से यहाँ का 30 डिग्री नॉर्थ के पास टेम्परेचर कम है. तो जो एयर इक्वेटोरियल रीजन में ऊपर की तरफ राइज की थी ना, वहाँ यहाँ पे आके पाइल अप होती है, मतलब नीचे की तरफ सिंक करती है. और इसलिए यहाँ क्या बन जाता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन जाता है. ठीक है. फिर यहाँ से हाई प्रेशर के बाद फिर क्या है? सब पोलर लो प्रेशर है और लास्ट में क्या है? पोलर हाई प्रेशर. पोलर हाई प्रेशर क्यों है? ये तो तुम सिंपली जान सकते हो कि यहाँ पे फ्रिजिड जोन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है. तो जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो हवा नीचे की तरफ पाइल अप होती है, जमा होती है, इसलिए वहां पे एयर का कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा. ठीक है ना. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर इन पोलर रीजन? Due to very low temperature, the wind is accumulated and piled up
in this region. So it leads to high pressure of the wind. ठीक है, बताओ what is the cause of high pressure over polar region? Anyone is able to say? ट्राई करो। ऋषि, कौन कौन प्रेजेंट है? कीर्ति, मान्या, मैम एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट करते हैं। देखो हम यहाँ अभी अभी तक क्या बताए, ये इस डायग्राम के थ्रू क्या पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो कि पूरे वर्ल्ड पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का परमानेंट बेल्ट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और क्यों है, ठीक है। तो ये इक्वेटर के पास कौन सा है एयर का? लो प्रेशर बेल्ट है। फिर सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। फिर क्या है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये 60 डिग्री नॉर्थ के पास। और लास्ट में 90 डिग्री के आसपास क्या है? फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। इसको क्या कहते हैं? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पोलर रीजन में हाई प्रेशर क्यों होता है? इसलिए होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है ना। ये टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा क्या होती है उसमें, और वो भारी होता है और नीचे की तरफ इकट्ठा होते रहता है, इसलिए उसका हाई प्रेशर बन जाता है वहाँ। रिपीट करो मान्या। Why there is? Because in northern and southern hemisphere the temperature of air is very low and settle down in land and due to extremely low pressure in the due to extremely low temperature in the polar region around the North Pole and around the South Pole, the wind settles down towards the surface. Why? Because of low temperature, and this leads to high air pressure. देखो लो टेम्परेचर हुआ तो एयर प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एयर प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। इसको कहते हैं इनवर्सली रिलेटेड, मतलब एकदम अपोजिट मैनर में रिलेटेड है कि इक्वेटर के पास देख रहे हो कि यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी मिलता है यहाँ, तो यहाँ पे क्या तैयार हो गया? एयर का लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठते रहती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर तैयार हो गया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में विंड नीचे की तरफ पाइल अप होता है, नीचे की तरफ सरफेस के पास आके जमा होता है, तो यहाँ पे क्या तैयार हो गया? ट्रॉपिकल हाई प्रेशर तैयार हो गया, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर तैयार हो गया। और इधर की विंड, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, ये जो एरो मार्क है ना, ये विंड का डायरेक्शन बताया हुआ है, एरो मार्क से विंड का डायरेक्शन बताया हुआ है। तो यहाँ की सब पोलर हाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड ऐसे नॉर्थ की तरफ चलती है, और पोलर हाई से विंड ऐसे इस तरफ साउथ की तरफ चलती है, तो दोनों मिलके यहाँ पे राइज करती है, दोनों आपस में टकराने से ऊपर की तरफ राइज करती है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। और यहाँ क्यों हाई प्रेशर बना है? अराउंड द पोलर रीजन, बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। तो देखो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का बेल्ट बताना क्यों जरूरी है यहाँ पर, तुम पूरे ग्लोब पर विंड का डायरेक्शन जान सको कि पूरे ग्लोब पर जो परमानेंट विंड है, परमानेंट विंड किस डायरेक्शन में चला करती है। तो यहाँ देखो, इस देखो नदर्न हेमिस्फीयर में इसी से हमारा इंडिया का क्लाइमेट रिलेटेड है, तो या इसको जानना बहुत जरूरी है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड जो है वो किधर चलती है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चलती है। और इस विंड का नाम क्या लिखा हुआ है बताओ? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब तुम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के बारे में बताओ। द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्लोज फ्रॉम, यहाँ देखो और बोलो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर।
फिर से सुनो। northeast trade wind flows from subtropical high pressure to equatorial low pressure. इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है ना, इधर नॉर्थ ईस्ट से ये स्टार्ट हो रहा है। विंड का नाम हमेशा कैसे रखा जाता है? जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है ना, वही उसका नाम रखा जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए इस ट्रेड विंड को नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। वैसा ही विंड इधर भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, क्योंकि ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। यहाँ भी सेम है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से की तरफ विंड चल रही है सदर्न हेमिस्फीयर में भी, लेकिन यहाँ पे विंड ट्रेड विंड का क्या डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया। ठीक है, तो में ना ये दोनों विंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम्हें याद रहना चाहिए कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड किस लैटिट्यूड में ब्लो कर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कितने डिग्री के बीच में है। देख रहे हो ना, यहाँ इक्वेटोरियल रीजन से लेकर के सब चलती है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो इंडिया का जो मानसून पढ़ोगे ना, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का रोल है। इंडिया का जो एडवांसिंग मानसून है, उसके ओरिजिन में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का रोल है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है समझने में? बताओ। देखो, ये समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से सुनो और समझो। सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से स्टार्ट हो रही है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जा रही है, यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब इक्वेटर को पार कर जाती है ना, तो ये मानसून बनती है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में यही मानसून विंड बन जाती है। कौन सी विंड? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। South east trade wind after crossing equator becomes southwest monsoon. समझ गए? आज इतना ही बताते हैं तुम लोग को कि इस डायग्राम को तुम अच्छी तरह से समझ जाओ, क्योंकि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो और जो मानसून का जो ओरिजिन है वो कितने रीजन से रिलेटेड है, तो लगभग ये जो है ना 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये पूरा रीजन इंडिया के क्लाइमेट के लिए इसको समझना जरूरी है। समझ गए ना? तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी जान लो और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड भी जान लो। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉनसून क्लाइमेट में, इसलिए इसको याद रखना। इतना याद रहेगा। अब देखो इधर विंड है ना, ये इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी, ये सब यूरोपियन क्लाइमेट में ये सब वेस्टर्ली विंड चला करती है उधर, है ना, टेम्परेट क्लाइमेट में, और इधर टुंड्रा क्लाइमेट में इन सब विंड का रोल है। तो उसको हम सिर्फ इसका डायरेक्शन देख लो, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो की तरफ चलने वाली हवा जो है उसको क्या कहते हैं? वेस्टर्ली कहते हैं। और ये चूंकि साउथ से आ रही है इसलिए इसको साउथ वेस्टर्ली कहेंगे। और पोलर हाई से लो की तरफ आने वाली जो हवा है इसको क्या कहेंगे? ईस्टर्ली विंड कहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट से आ रही है। और भी क्लियर करने के लिए इसको क्या कह सकते हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली कह सकते हैं, कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? नॉर्थ ईस्टर्ली। ये पोलर एरिया में इसका इन्फ्लुएंस है। हमारे मानसून क्लाइमेट के लिए कितना हमको जानना जरूरी है? ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, इन दोनों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम इंडिया का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो अब देखो कि एक बार फिर से इसको समझ लो कि द होल ग्लोब, ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। The whole globe is divided into alternate air pressure belt. There are 1, 2, 3 and 4. These are 4 alternate air pressure belt in each hemisphere, in northern hemisphere and also in southern hemisphere. So let us start from 0 degree equator, and this belt
of low pressure of air is known as equatorial low pressure belt. इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. और ब्रैकेट में क्या लिखा है बोलो? डोल ड्रम, DOLDRUM, डोल ड्रम्स लिखा हुआ है. तो डोल ड्रम का क्या मतलब होता है? वेरी काम रीजन, काम CALM, मतलब एकदम शांत क्षेत्र है ये. क्यों? क्योंकि यहाँ विंड का मूवमेंट भी नहीं पता चलता है, क्योंकि यहाँ के सारे विंड क्या है? ऊपर की तरफ उठने वाले विंड है, इसलिए यहाँ विंड का कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पता नहीं चलता है. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डोल ड्रम या शांत क्षेत्र. हाँ, काम रीजन, जहाँ हवा का मूवमेंट पता भी नहीं चलता है. तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर हो गया. अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर 0 डिग्री और उसके आसपास है, एक बेल्ट बनाता है. ठीक है. इसके बाद दूसरा अल्टरनेट एयर प्रेशर बेल्ट का क्या नाम है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास है. देख रहे हो ना डायग्राम में? तो इसको एक और नाम दिया गया है, क्या? हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं. यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाई एयर प्रेशर बेल्ट है, इसलिए इसका हॉर्स लैटिट्यूड नाम दिया गया है. हॉर्स लैटिट्यूड कैसे नाम पड़ा? कि पुराने समय में जो ट्रेडर्स आया करते थे तो उन हॉर्स का भी ट्रेड करते थे, तो उनके बोट्स पे, बड़े बड़े बोट्स होते थे जो मैनुअली चलाते थे वो लोग, अभी की तरह मैकेनाइज शिप नहीं हुआ करते थे. तो यहाँ पे इतना एयर प्रेशर हो जाता था कि बोट डूबने लगता था. तो उसके बोट के वजन को कम करने के लिए वो हॉर्सेस को सी में फेंक देते थे. तो इसलिए उस समय से इस लैटिट्यूड का क्या नाम पड़ा है? हॉर्स लैटिट्यूड. 30 डिग्री अराउंड जो है प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, है ना? तो हॉर्स लैटिट्यूड और डोल ड्रम, ये दोनों समझ गए तुम लोग? हाँ, और इसके बाद और इक्वेटोरियल लो प्रेशर से स्टार्ट करेंगे हम लोग. तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इस रीजन के बीच तक हमारा क्लाइमेट जो है सो बहुत रिलेटेड है मॉनसून क्लाइमेट. तो एक और डायग्राम तुमको हम शेयर करते हैं, दिखाते हैं. देखो इसको, ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो यहाँ पे दोनों साइड से, नॉर्थ की तरफ से भी और साउथ की तरफ से भी आने वाली हवा ऐसे ऊपर की तरफ राइज कर रही है. देख रहे हो ना ये डायग्राम, कि ऐसे विंड जो राइज कर रही है ऊपर की तरफ, वो यहाँ पे ऐसा ही होता है. इक्वेटोरियल रीजन में ठीक यही टेंडेंसी है विंड का, कि दोनों तरफ से, नॉर्थ की तरफ से आने वाली और इधर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो, दोनों हवा आती है इस तरफ बीच में और ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है. ठीक है ना? और तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड स्टार्ट होती है, जिसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं. और सदर्न हेमिस्फीयर में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड स्टार्ट होती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चलती है, और इसको क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से मॉनसून का ओरिजिन होता है. अब तुम बताओ ये आंसर. फ्रॉम विच विंड इज द साउथ वेस्ट मॉनसून ओरिजिनेटेड? Can you answer? Are you listening? फिर से सुनो. साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से मॉनसून विंड का ओरिजिन होता है. साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है, जो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ती है, तो वही मॉनसून विंड बनती है. ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करके जब इंडियन ओशन को पार करती है और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अट्रैक्ट होती है,
तो उसी विंड को क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। तो अब बोलो तुम, विच विंड इज द ओरिजिन ऑफ मानसून विंड? When southeast trade wind passes to equator and हाँ ठीक है, द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इज द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। मानसून का एक्चुअल नाम क्या है, मानसून कहते हैं ना, ये इंडिया से चला करती है, ठीक है ना। तो अब तुम समझ गए कि इस एयर प्रेशर बेल्ट, उसके नाम याद रखने हैं और अकॉर्डिंगली विंड का डायरेक्शन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी से कोरिलेट करके हम दोनों मानसून को पढ़ाएंगे। एक हो गया एडवांसिंग मानसून और दूसरा हो गया रिट्रीटिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून को साउथ ईस्ट मानसून कहते हैं और रिट्रीटिंग मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। अब तुम रिपीट करो, एडवांसिंग मानसून को क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट मानसून। साउथ ईस्ट से आती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से ये विंड बनती है, तो जो एडवांसिंग मानसून है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से उसका ओरिजिन होता है, लेकिन उसका अपना नाम क्या हो जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडिया के मैप, इंडिया के मैप में हम क्लाइमेट वाले मैप में इसको बताएंगे, एरो मार्क करके दिखाएंगे। तो एडवांसिंग मानसून, जो आने वाली मानसून है, जो सी से लैंड की तरफ आती है, उसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और जो लौटने वाली मानसून है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है ना। तो आज के लिए यही इसी का डिटेल रहेगा। अब तुम लोग को हम आगे के क्लास में और इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे।